देव्यै नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Today let us learn Bhagavad Gita chapter 8 Akshara Brahma Yoga shloka numbers 26 to 28. Repeat after me. शुक्ल कृष्णे गतिह्येते शुक्ल कृष्णे गतिह्येते शुक्ल कृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते जगतः शाश्वते मते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् एकया यात्यनावृत्तिम् एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः अन्यया वर्तते पुनः अन्यया वर्तते पुनः. Let us chant together. शुक्ल कृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः. Now you chant. शुक्ल कृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः. Listen to me. Shukla Krishne gatihyete Jagata Shashvate Mate Ekaya Yatyanavrittim Anyaya Vartate Punah. Repeat after me. Shloka number 27. नैते श्रुति पार्थ जानन् नैते श्रुति पार्थ जानन् नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन योगी मुह्यति कश्चन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन योगयुक्तो भवार्जुन योगयुक्तो भवार्जुन. Let us chant together. नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन. Now you chant. नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन. Listen to me. नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन. Repeat after me. Last shloka of the day. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. Let us chant together.
वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. Now you chant. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. Listen to me. Vedeshu yajneshu tapassu chaiva daneshu yat punya phalam pradishtam atyeti tat sarvamidam viditva yogi param sthanam chadyam. Now listen to all the three shlokas of the day. Shukla Krishne gatihyete Jagata Shashvate Mate Ekaya Yatyanavrittim Anyaya Vartate Punaha Naite Shruti Parthajanan Yogi Muhyati Kaschana Tasmat sarveshu kaleshu yoga yukto bhavarjuna vedeshu yajneshu tapassu chaiva daneshu yat punya phalam pradishtam atyeti tat sarvamidam viditva योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः. These two paths, the bright and the dark, are considered to be the world's eternal paths. Proceeding by one, a man has not to return, while taking the other, he returns. O Arjuna, knowing these two paths in essence, no yogi who gets deluded. Therefore, be saturated with yoga in the form of equanimity at all times. The yogi who knows this secret transcends the fruits of meritorious deeds attached to study of Vedas, performance of sacrifices, austerities, and charities, and he attains the supreme primeval mode. Words Akshara and Brahma stand for both the qualified and absolute aspects of God, and the appellation of God, Om, is also designated as Akshara and Brahma. The present chapter has been given the title of Akshara Brahma Yoga, the yoga of the indestructible Brahma, inasmuch as it leads with both the qualified and absolute aspects of God as well as with Om. The 8th chapter begins with the 7 questions of Arjuna regarding Brahma, Adhyatma, and so on. Lord Krishna explains that Brahman is supreme and indestructible. One's own self, the individual soul, is called Adhyatma. It is the universal self manifest in every individual. Work is a creative force and is the activity of non-self. The lower nature, Krishna, is present in the sacrifice and is the object of man's worship. His very life on earth is sacrifice. Arjuna,
It is important for everyone to remember this person or the indestructible Brahman at the time of death and at all times, as a man goes and becomes one with that very being on whom he rests his thoughts at the end. The ascetic who contemplates on the Supreme Person with devotion will go to him at death. Such ascetics who meditate on the Supreme Indestructible Brahman, knowing Krishna as one with the Supreme, repeating the sacred syllable Om, which is Brahman, reach the highest realm. But Krishna is easily accessible to any ascetic who meditates on him with single-pointed devotion. Those who come to him are released from rebirth, and all the worlds in creation are subject to appearance and disappearance. But why are they born again? Because Brahma and other deities are limited by time. Brahma's day consists of the period of manifest existence, and Brahma's night is the period of non-development. And as at coming of each day, the living beings come to birth and are dissolved at the approach of night, so those who reach the realm of Brahma are born again. There is existence of yet another unmanifested eternal existence which does not perish, even though all beings perish. The same unmanifest has been spoken of as the supreme goal, the indestructible, the supreme abode, and the supreme person. Exclusive devotion is the means of attaining the same. The bright and the dark are considered to be the world's eternal paths. Proceeding by one, a man has not to return, while taking the other, he returns. The yogi who knows these two paths in essence does not get deluded, attains the primeval supreme state. क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियाँ अनादिकाल से जगत यानी प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। हे पुत्रानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त समता में स्थित हो जा। योगी भक्त इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अक्षर और ब्रह्म दोनों शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों के वाचक हैं तथा भगवान का नाम ओम ओंकार है। उसे भी अक्षर और ब्रह्म कहते हैं। इस अध्याय में भगवान के सगुण निर्गुण रूप का और ओंकार का वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। अर्जुन, ब्रह्म अध्यात्म आदि विषयक 7 प्रश्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण 7 प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देकर कहते हैं, अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य मरता है, उसी को वह प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति चाहने वाले के लिए अंतकाल में भगवान का स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है। तू निरंतर मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा।
अभ्यास योग युक्त पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अक्षर निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना करने वाले योगी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए योग धारण में यानी इंद्रियों का संयम और मन तथा प्राणों का मस्तक में निश्चल स्थित होकर मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हुए परम गति को प्राप्त होते हैं। मेरा प्राप्ति का सुगम उपाय केवल अनन्य प्रेम पूर्वक मेरा चिंतन करना। मुझको प्राप्त करने वाले को पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता। अन्य समस्त लोग पुनरावृत्तिशील है। योगी जन काल के तत्व को जानने वाले होते हैं। परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। मुक्ति सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु है। इसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ शेष भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। संपूर्ण दुख सदा के लिए दूर हो जाता है। जिसको प्राप्त करके मनुष्य नहीं लौटता वही मेरा परम धाम है। उसी को अव्यक्त अक्षर तथा परम गति कहते हैं। दोनों मार्गों को शरीर त्याग कर वापस न लौटने वाली गति और वापस लौटने वाली गति को समझाते हैं। शुक्ल उत्तरायण दिव्य प्रकाशमय और कृष्ण दक्षिणायन अंधकारमय अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन मार्ग माने गए हैं। तू सदा सर्वदा योग युक्त हो जा और निरंतर भक्ति प्रधान कर्मयोग में श्रद्धापूर्वक तत्पर रह।